probability of happening by event E is n E over ns as the sample space here and E is the given event and E is the number of outcomes in the event A, or you can say and E has happened. So these are the favorable cases and E, and NS is the total number of cases. Next one is 0 equal less than B equal to less than 1. Probability जो है किसी भी event की, it always lie in between 0 and 1. 0 कब होती है when the event is impossible, और 1 कब होती है sure event के लिए. Next is probability of happening the event E plus probability of not happening the event E is always 1. अगर दोनों में से हमें कोई एक पता है, we can find out the other by subtracting from 1. Next is if S is the sample space containing W1, W2, W3 and so on like this up to down at sample points. These are the sample points. Then sum of the probabilities of individual sample points would be equal to 1. PW1 plus PW2 plus PW3 and so on like this plus PWN is equal to 1. Next is if E1, E2, E3 up to En are mutually exclusive and exhaustive events, then PE1 plus PE2 plus PE3 and so on like this plus PEN is equal to 1. सारी probabilities का टोटल कितना होगा 1 होगा अगर इसमें ये वाली events E1, E2, En ये वाली events कौन सी हो mutually exclusive means pairwise disjoint set chain and exhaustive उनका sum जो है वो उनका union जो है that should be equal to sample space. ठीक है, mutually exclusive का मतलब है EI intersection EJ is equal to 5. Pairwise disjoint sets होने चाहिए और exhaustive events का मतलब है summation EI मतलब E1 union and so on like this union EN should be equal to sample space. उनको ज्वाइन करो, जब आप उनकी यूनियन करो तो आपके पास सैंपल स्पेस आए. So number 1 PA union B, event A or event B, probability of happening the event A or B, it will be equal to PA plus PB minus PA intersection B. तो यहाँ से आपके पास यूनियन का फॉर्मूला भी आता है और इंटरसेक्शन का भी आता है. क्लियर? इसी से इंप्लाइज दैट PA intersection B is equal to तो चेंज हो जाएगा PA plus PB minus PA. Now special case, if A and B are disjoint sets, means if A intersection B is equal to 5, disjoint set हो गए. अगर ये disjoint है, दोनों events disjoint है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों events में mutually exclusive है. अगर mutually exclusive events है, then what will be there? PA union B will be equal to PA plus PB, because in that case probability of B intersection B will be 0. Clear? क्योंकि A intersection B में आपके पास क्या है? Number of elements in B intersection B will be
0 अगर ये डिस्जॉइंट सेट है, ठीक है। अगर इसमें ये खाली ए इंटरसेक्शन बी है एम्प्टी सेट है इक्वल टू 5, अगर एम्प्टी सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए 0, तो इनका बी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये स्पेशल केसेस के लिए है, एक्चुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए। सिमिलर इज द second one, P A union B equals C. It will be PA plus PB, probability of happening of B, plus PC minus PA intersection B minus P B intersection C minus P A intersection C plus P A intersection B intersection C. इसमें भी अगर ए बी सी जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, इफ ए बी एंड सी if these are mutually exclusive, then what will be there? यहाँ पे भी पेयर वाइज इंटरसेक्शन है, वो सारी 0 हो जाएगी। अगर पेयर वाइज इंटरसेक्शन 0 है तो तीनों की इंटरसेक्शन भी 0 हो जाएगी, तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा which implies P A union B union C equal to P A plus B plus PC. Yes, 3 points are tossed once. 3 points are tossed once, or 1 point is tossed 3 times. One and the same thing. Let A denote the event 3 heads. तो अगर आपने जो एक्टिविटी है, जो एक्सपेरिमेंट है, टॉसिंग ऑफ 3 points. Now, event A. You are asked, event A is 3 heads. So A will be H, H, H. Event B denotes the event of 2 heads and 1 tail. अब event B में क्या है? 2 heads, 1 tail. तो क्या करोगे? कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे आपको। H, H, 2 heads, 1 tail. क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? ये कंडीशन चेंज करते जाओगे। H, T, H, T, H, H. These are the possibilities. Next is C. Denote the event 3 tails. C आपके पास क्या गया? 3 tails. And D denotes the event a head on the first point. अब D event जो है उसमें क्या है? First point पे head D होगा, तो first value fix होगी आपके पास, क्लियर। और कितनी इवेंट है टोटल, कितने हम इसमें ट्राई ले रहे हैं? 3 ट्राइज, 3 टाइम्स टॉस करना है, तो आपके पास हर एक जो सैंपल पॉइंट है उसमें 3 ही इसके आउटकम्स होंगे, क्लियर। तो फर्स्ट वन तो फिक्स हो गया H। अगर आप फर्स्ट वन छोड़ देते हो, बाकी के आपके पास 2 ट्रायल बच रहे हैं ना, क्योंकि 1 जो है वो तो फिक्स है। अगले 2 ट्रायल जो है, जब आप प्रोबेबिलिटी का करते हो throwing 2 points together, तो आपके पास क्या क्या आउटकम्स आते हैं ऑफ throwing 2 points together के? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, देन टेल। ये आपके पास 2 पॉइंट्स के आउटकम्स आ गए। अब इसमें तीसरा जो है फर्स्ट वन को फिक्स्ड है, सबके साथ आप एच एच, बिकॉज़ फर्स्ट वन इज फिक्स्ड, क्लियर। अगर टोटल लिख दे तो आगे टीवी भी लगा दोगे तो टोटल 3 के आउटकम्स हो जाएंगे, ए टू रेज पावर 3। तो आपके पास ये इवेंट्स आ गए ए बी सी। अब आपने क्वेश्चंस को फॉलो करना है, क्या आपसे पूछा है
Which pair of these events are mutually exclusive? So simply you have to find the intersection. पहले इन दोनों को अगर आप चेक करो, इन दोनों में is there something wrong? So here A intersection B is equal to 5. तो A B दोनों क्या हो गए? Mutually exclusive. उसके बाद अगर हम A और C की बात करते हैं, A intersection C, it is also 5. Empty set है, कुछ भी कॉमन नहीं है. यहाँ पे all heads है, यहाँ पे all tails है. Next is A intersection D. अब A intersection D is not 5, तो ये mutually exclusive नहीं होगा. A intersection D क्या हो जाएगा इसमें कॉमन? H H H. And it is not equal to 5. ये 5 के इक्वल नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट कौन सा हो गया आपके पास? अब आपके पास ए बी ए सी ए बी कॉम्बिनेशन हो गया. नाउ बी सी अगेन these are mutually exclusive. B intersection C is 5. Next is B intersection D. अब इसमें अगर आप देखो H P H, it is not equal to 5. So B intersection, sorry D, it is not equal to 5. उसके बाद C and D, ये दोनों सेट्स C and D की इंटरसेक्शन क्या होगी आपके पास? 1 it is 5. तो कौन से सेट्स होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? A and B. Second is A and C. Then third is B and C. And last one is C and D. Mutually exclusive. These are mutually exclusive. Three coins are tossed. Again, जो experiment है, three coins are tossed. First one is you have to describe two events which are mutually exclusive. Two events which are mutually exclusive. तो उसमें हम event A रख लिया, ठीक है, क्या बोलेंगे? All heads. और event B you can say all tails. तो उसको कैसे लिख सकते हैं कि अब यहाँ से क्या होगा? Both the events are mutually exclusive. Here A intersection B is equal to 5. So these are mutually exclusive events. Second, ये फर्स्ट पार्ट का. सेकंड एग्जांपल आपको देनी है two events which are not mutually exclusive. ठीक है, two events which are not mutually exclusive. तो आपने सोचना आपकी एग्जांपल डिफरेंट भी हो सकती है. Let A is equal to say event A H H all heads. और उसके बाद इवेंट B है, ठीक है, हमें यहाँ पे दूसरी इवेंट C ले ली. We can write it as at most one tail. अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे at most one tail, तो मेरे पास C के लिए कौन से पॉइंट्स आएंगे? at most one tail के लिए ज्यादा से ज्यादा one tail, कम से कम कितनी हो सकती है? 0 भी हो सकती है. one tail है, ठीक है, two heads. टेल की पोजीशन चेंज करनी चाहिए. H E H फिर H H E, ठीक है.
उसके बाद टू डेज हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि क्वेश्चन में हमने क्या सपोज किया, एट मोस्ट 1 डे, ज्यादा से ज्यादा 1 डे, ठीक है। तो कम से कम कितनी हो सकती है, 1 या 0। तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, अगर 0 दे देंगे तो सारे क्या देंगे, एच एच एच। तो ये इवेंट होगी 2 हेड्स और 3 हेड्स। अब इसमें देखिए ए एंड सी, these are the 2 events which are not mutually exclusive. Disjoint sets नहीं है, A intersection C आपके पास क्या आ रहा है, H H H, it is not equal to 5. So these are not mutually exclusive. These are not mutually exclusive. Clear? Now, third part, 2 events which are mutually exclusive but not exhaustive. तो हमने जो फर्स्ट केस लिया था सबसे पहले, A H H H and B all A. अब यहाँ पे क्या है, A इंटरसेक्शन B, वो तो 5 है, लेकिन इनका यूनियन A union B is not equal to sample space. Clear? Sample space में कितने एलिमेंट्स होंगे, आपको पता ही है ना, sample space ऑफ टॉसिंग 3 पॉइंट्स, उसमें क्या क्या आ जाएगा, H H H, ये हो जाएगी 1 ले लिया, उसके बाद H H T, then H T H, then P H H, और उसके बाद आपके पास ये हो गए 3 हेड्स, उसके बाद 2 हेड्स, फिर 1 हेड वाला केस आ जाएगा H E, उसके बाद T H P, then T P H. क्लियर? उसके बाद ऑल डेज 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 is power 3 नंबर ऑफ आउटकम्स। तो दोनों मिलके ये तो सिर्फ 2 ही आपके पास, इसमें ये सैंपल पॉइंट हो गया, ये क्या ओनली 2 है, तो मिलके S नहीं बना रही है, it is not equal to S. So this is the example of mutually exclusive events which are not exhaustive. Next is number 4. Here you have to give the example 3 events which are mutually exclusive and exhaustive. 3 events दे रही है which are mutually exclusive and exhaustive. तीनों मिलके ही complete sample space बनाए और उनकी intersection आपस में pair wise जो है वो 5। तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, तो सिंपल A is equal to H H H all heads, B हमने ले लिया same all day, ठीक है, दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब हमें कौन सी इवेंट्स चाहिए जिसमें ना तो पूरे हेड हो ना पूरे टेल, तो हम अगली कौन सी एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें नॉट ऑल सेम, जितने भी आपने अगले एक्सपेरिमेंट किए उसमें सारे आउटकम्स जो है नॉट ऑल सेम, कौन कौन से होंगे, नॉट ऑल सेम का मतलब है फर्स्ट जो ट्रायल था आपका उसमें आ गया अदर हैंड आ गया, तो बाकी के दोनों हेड नहीं होने चाहिए, 2 हेड्स हो सकते हैं, ऑल 3 कैन नॉट बी हेड्स। तो 2 के साथ अगर हम स्टार्ट करें 2 हेड्स मानेंगे H E H, then P H H, क्लियर? उसके बाद 2 हेड्स हो सकते हैं, 3 हेड्स नहीं हो सकते, क्लियर? 1 हेड हो सकता है H P P, then H P H P, उसके बाद here 2 days, then
PTH. 1 2 3 4 5 6 क्लियर। और ये दोनों मिला के आपके पास सैंपल स्पेस हो गया, लेकिन उनकी पेयर वाइज इंटरसेक्शन आपके पास क्या है 5। क्लियर। इसका मतलब ये कौन सी एग्जांपल होगी जिसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। इस केस में क्या होगा, A intersection B is equal to B intersection C is equal to A intersection C is equal to 5, कुछ भी कॉमन है, and there is A union B union C is equal to sample space. Next is fifth part, three events which are mutually exclusive but not exhaustive. That is for your homework. Exercise 13B. अब इसमें आपको क्या गिवन है, let S be the sample space and the sample points are A, B, C, D and E. Which of the following cannot be valid assignment of the probability of outcomes? तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोलना है, आपको इवेंट A, B, C, D, ये आउटकम्स के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज गिवन है, देयर प्रोबेबिलिटीज दैट इज PA, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 1/5, B की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है अगेन 1/5, here the number 5 1/5 and it is also 1/5. क्लियर। सबसे पहले आपने क्या देखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी ऑफ द इवेंट, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू इसके बीच में लाइन होनी चाहिए 0 और 1 के बीच में, इट मे बी 1, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द सैंपल पॉइंट्स दैट इज PA प्लस PB प्लस PC plus PB plus PC, their total should be 1. Clear? कोई भी वैल्यू बीच में नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. So from this basis you can find out the answer. अब इस केस में क्या है, sum of all probabilities is equal to how much? 1 हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 times 1/5. इसका मतलब क्या है कि ये सारे मिलके आपको कितना दे रहे हैं 1/5 into 5. Their sum of probabilities is 1. तो फर्स्ट कंडीशन ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, कोई भी प्रोबेबिलिटी इसमें जो है ना तो नेगेटिव होनी चाहिए ना ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, किस रेंज में आनी चाहिए 0 से लेके 1 तक। सो देयरफॉर इसका आंसर क्या लिखना चाहिए, इट इज अ वैलिड असाइनमेंट. So A part is, it can be the probability. It is valid. It is valid. Clear? Similarly, all other parts you have to check. It is not a difficult question. Clear? Problem कहाँ पे? Second is also valid क्योंकि उसमें all the probabilities are 0. उसमें ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये 1 है, अब 0 भी हो सकती है वैल्यू, 1 भी हो सकती है. क्लियर? और their sum is 1, so that is also valid. अगर नेगेटिव है then it is not valid. जब आप इसका थर्ड पार्ट में देखिए, उसमें probability of one of the sample point is 3/2 point B, that is greater than 1. 3/2 कितना होता है 1/2. Clear? That is greater than 1, so it is not possible. Similarly, in fourth part, one of the probability is -3/5. That is also not possible. And in the last part, you can find that sum is not equal to 1. So last three, these are not valid assignments of probability. Question number 3.
An unbiased dice is rolled. Find the probability of getting number 1 5. अब आपके पास अगर डाइस है काउंटिंग में कितनी है 1, तो सैंपल स्पेस में आपके पास क्या क्या होगा 1 2 3 4 5 6 क्लियर, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज रोलिंग अ डाई। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 5 इट इज सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है 5 में हमें के चांसेस कितने हैं 1 over 6। नेक्स्ट इज number 2। Similarly, for 2, probability of happening the event 2। कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास you all must be knowing, अगर अकेला 2 है तो 1/6, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है probability of 2 is 1/6, लेकिन यहाँ सॉरी क्वेश्चन में क्या है probability of 2 or 4। now it can be done in 2 ways, है ना 2 और 4 का अगर आप इसमें इवेंट बनाओ, let E be the event of getting 2 or 4। और का मतलब क्या है, या तो इसमें 2 हो सकता है या 4 हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। तो जब आप इसमें इनकी यूनियन करोगे 2 यूनियन 4, तो आपके पास में क्या आ जाएगा 2 and 4 होगा। ठीक है, यूनियन पता है ना सबको, और जहां पे भी यूज है इसका मतलब यूनियन है। ठीक है, अगर सेट ए में है बी में 4 है तो ये वाला आपके पास आ जाएगा ए और बी। ठीक है, 2 और 4। अब इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज ऑफ गेटिंग 2 और 4। कितने आउटकम्स है 2 आउटकम्स मींस फेवरेबल आउटकम्स जो आपको चाहिए, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2 है ओवर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी होगी 1/3। So probability is 1/3। Next is an even number। ये सिंपल क्वेश्चन है, an even number you all can do that। even number कौन से होंगे, अब इसमें even number कितने हैं 2 4 6। so number of outcomes in favor, probability of even number is equal to 1 to 3 out of 6। so probability of even number is 1/2। an even number or a multiple of 3। an even number or a multiple of 3। तो आपके पास let event be equal to an even number or a multiple of 3। तो हम E में क्या क्या एलिमेंट्स ले सकते हैं, या तो वो इवन नंबर होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। अगर दोनों है इवन भी है मल्टीपल ऑफ 3 भी है तो भी चलेगा, ए और बी। तो कौन कौन से एलिमेंट्स में आ गए, इवन नंबर 2 से स्टार्ट हुए 2 आ गया, मल्टीपल ऑफ 3 आ गया, 4 इवन नंबर, उसके बाद 5 विल नॉट कम क्योंकि ना तो वो मल्टीपल ऑफ 3 है ना ही वो इवन नंबर है। नेक्स्ट 6 is even number as well as multiple of 3। तो ये हो गया आपके पास, ये वाला सेट जो हो गया इट इज an even number or a multiple of 3। so probability of this event E is equal to, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं and E is equal to 1 2 3 4। number of successful outcomes 4 over total number of outcomes कितने हो गए 6। so it will be
2 by 3. Same sample space है and even number instead of or. Now it is and a multiple of 3. Let this element be E1. Clear? तो E1 में आपके पास कौन से एलिमेंट्स होंगे? इवन नंबर एंड ए मल्टीपल ऑफ 3 दोनों क्वालिटीज उसकी होनी चाहिए. वो इवन नंबर भी होना चाहिए, वो मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए. 2 is even number but not a multiple of 3. We will not take it. 3 is multiple of 2 is even number not a multiple of 3. 3 is multiple of 3 but it is not even. ये भी नहीं लेते. तो कौन सा नंबर आ जाएगा इसमें? ओनली एंड ओनली 6. वो इवन भी है और वो 3 का मल्टीपल भी है. अभी यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 that is 1 probability of getting this it is 1 over 6. इसमें एक ही एलिमेंट है, इसमें 6 एलिमेंट्स.